Our look at this schematic representation of transport of that gases through heart and lungs. So as you know that from lungs, oxygenated blood is carried out by which vein? Actually, veins carry, actually blood vessels are of three types: arteries, veins and capillaries. Arteries का function है, they carry blood from heart to various body parts, और heart से वो oxygenated blood को carry करके different cells या different body parts तक लेके जा रही है. And veins collect deoxygenated blood from various parts of body and they take it back to the heart. So veins always carry deoxygenated blood, but arteries carry oxygenated blood. But one exception is there, that one artery which takes blood from heart to lungs. Lungs तक जो blood जा रहा है heart से वो deoxygenated जा रहा है. So this is the only artery which carries deoxygenated blood. Name is pulmonary artery. And otherwise veins collect deoxygenated blood from our body organs and they send it back to heart. But there is one vein that carries oxygenated blood from lungs to heart. What is its name? Last Simmer will tell. Only vein that carries oxygenated blood. एक ही वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, बाकी डीऑक्सीजनेटेड ये सब. Pulmonary vein. And from where it carries blood? From lungs to? Someone is telling you? And both of these arteries and veins, जहाँ पर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, they have very fine vessels which are known as capillaries, and actual site of gaseous exchange or any type of material exchange is that capillaries. This is the major role because capillaries have very thin walls, उसके through gaseous और material exchange बहुत easily हो पाता है. तो capillaries का major role क्या है? Gaseous exchange का काम करना, जहाँ arteries and veins एक दूसरे से connect होती है. There they have a rich supply of these very thin blood vessels known as capillaries. Now, what happens to this oxygenated blood when it reaches to heart? In which chamber it enters first, and then finally how it transports? Who can explain that? Diagram में जो red color से show हुआ है, that is oxygenated blood, and blue color shows deoxygenated blood. ठीक है, because red is rich in oxygen, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन उसको रेड कलर से शो किया ब्लड में, और रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लू कलर से शो किया. तो बाय लुकिंग एट द डायग्राम, हु विल एक्सप्लेन दिस प्रोसेस? फर्स्टली यू टेल जस्ट ओनली हाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट्स फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू हार्ट. आपको आर्टरीज, वेन्स, जो भी चीजें इन्वॉल्व है, यू नीड टू मेंशन. बस ये 3-4 स्टूडेंट्स ही हैं only who are raising hands. Vikrant, can you explain? Why not? Quite simple. I think 6th-7th class में भी पढ़ा आपने circulation. थोड़ा सा बस names एक दो ज्यादा आए होंगे, बाकी कोई फर्क नहीं है. मालविका, पहले मैंने ऑक्सीजनेटेड का पूछा. लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया सपोज, and it is carried to the heart by the help of pulmonary vein. Now what happens to that blood? Where it enters and where it transfers further? Atrium, you can say. And how it passes through? Actually, heart is a muscular organ. It rhythmically contracts and relaxes. So when left and atrium contracts, then it pumps the blood into the left ventricle. And उसके बाद फिर ventricle contract होते हैं, तो they pump the blood into the where? Aorta. Aorta is the major artery which carries blood
फ्रॉम हार्ट, और उसके बाद एओर्टा जाके फर्दर डिवाइड हो जाती है डिफरेंट आर्टरीज में विच मूव टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और उसके बाद सेल्स तक पहुंचने का काम छोटी छोटी आर्टरीज का, और सेल्स के अंदर मतलब सेल्स के बाहर यू कैन से इंटरसेल्युलर स्पेसेस में या टिश्यूज के अंदर रिच ब्लड सप्लाई जो या गैसियस एक्सचेंज जो चल रहा है वो फिर कैपिलरीज के थ्रू। ठीक है, ये देखो टॉप पे लंग्स में और बॉटम में जो टिश्यूज के अंदर आपको दिखाया हुआ है वो कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, एंड दिस network of capillary is the main site for gaseous exchange, whether it is in lungs में alveoli के अंदर होता है और body organs में tissues के अंदर capillaries की supply रहता है हर एक organ में। ठीक है, so this is about oxygenated blood. Now it is reached to various cells में इस blood में से क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये ट्रेवल कर रहा है ब्लड के अंदर, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट डे दैट हीमोग्लोबिन हैज अ टेंडेंसी टू मेक अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ऑक्सीजन, जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे ही ब्लड किसी भी ऐसे पार्ट में पहुंचेगा जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपने आप डिसोशिएट हो जाता है टू रिलीज ऑक्सीजन, एंड इट कैरीज देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब देखा आपने लंग्स में रिच है ऑक्सीजन सप्लाई, तो वहां पे ये बन रहा है, टूट नहीं रहा। ठीक है, और वहां से ये हार्ट के थ्रू कैरी होता हुआ it reaches to final cells, and in cells you know that in mitochondria cellular respiration is taking place all the time, and cells are deprived of oxygen because they are using oxygen continuously for producing ATPs. clear? तो अब cells में डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की, तो अपने आप ही ऑक्सीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो जाता है, इट रिलीजेस ऑक्सीजन बैक एंड दैट ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट थ्रू दीस कैपिलरीज इनटू द सेल्स। और सेल्स का रेस्पिरेशन प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन CO2. That CO2 is now not present in that oxygenated blood. वो प्यूरिफाई होके आया, उसमें बहुत कम अमाउंट में CO2 है और सेल्स के अंदर ज्यादा है, तो अपने आप CO2 डिफ्यूज होके कैपिलरीज के थ्रू इस ब्लड में मिक्स हो जाती है, एंड नाउ दिस ब्लड इज फर्दर कैरीड बाय द वेन्स टू द मेजर वेन। मेजर वेन कौन सी है, जो हार्ट तक लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वेना केवा। तो वेना केवा के थ्रू ये काम एंटर होगा ब्लड, राइट ऑरिकल, ऑरिकल भी कह सकते हो, एट्रियम भी, बोथ टर्म्स आर करेक्ट, एंड फ्रॉम राइट atrium when it contracts, blood is transferred to right ventricle, and through right ventricle the blood reaches to lungs by the help of pulmonary artery. ठीक है, तो this is the entire process in which blood enters twice in left or right atrium through arteries, through veins you can say, and that is why the process is known as double circulation. ठीक है, तो this is why reasoning question भी आ जाता है, why transportation of oxygen through blood in human beings is called a double circulation process. और सबसे important चीज, why it is required to have a separate transportation system in higher organisms. Lower organisms में नहीं है कोई transportation system, ऐसा blood नहीं है उनके पास, और they don't require either a heart. Lower organisms में तो heart भी नहीं है। बहुत बारी चीजें बताई हुई हैं, but you don't bother for that. लावण्य, and because of higher organism body design is very complex, और उस कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। The large amount of energy can be generated only if we have a continuous supply of oxygen, and that supply of oxygen cannot be sufficient if we have only diffusion or simple processes of transporting oxygen in body. So that is why a separate transportation system is present in higher organisms, and we are lucky that we have this red colored pigment hemoglobin that carries blood. अगर ये नहीं होगा ब्लड के अंदर तो ब्लड कुछ नहीं कर पाएगा फिर ट्रांसपोर्टेशन का। And can you name one gas which has higher tendency to form stable complex with hemoglobin in blood? I told you that one gas which is present as a pollutant
which has a higher tendency to form और more stable complex बनाती है वो ब्लड के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। बस यही 5-6 हैंड होते हैं और आगे कोई ट्राई नहीं करता। पुष्कर CO2 नहीं बनाता स्टेबल कॉम्प्लेक्स, CO2 तो रादर जस्ट डिफ्यूजन से ही ट्रेवल करता ब्लड में। काव्या ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के अलावा पूछा मैंने, ऑक्सीजन से भी ज्यादा स्टेबल बनाता वो कॉम्प्लेक्स। आई टोल्ड दैट एंटायर मैकेनिज्म ऑन दैट डे। मनराज, carbon monoxide, that is why it is known as a poisonous gas. It forms a 200 times more stable complex। और जो चीजें स्टेबल होती है केमिस्ट्री में हम यही पढ़ाते हैं, जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है वो बन जाता है पहले। तो अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में ब्रीथ कर रहे हो थोड़ी देर भी, आपकी बॉडी सेल्स धीरे धीरे डिप्राइव होती जाएंगे ऑक्सीजन में, चाहे आप ऑक्सीजन भी इनहेल कर रहे हो, बट योर blood will take up that carbon monoxide because its complex with blood hemoglobin is more stable। 200 times ज्यादा stable है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन as compared to ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये टर्म्स यूज होती है उन कंपाउंड्स के लिए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज द नेम यूज्ड फॉर द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में जो कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज 200 times more stable, hence it easily formed and readily formed। so ब्लड तो ट्रांसफर तो वैसे ही करेगा, हार्ट ने तो काम करना सिर्फ पंप का, उसने ये नहीं देखना कि ऑक्सीजन की जगह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना हुआ, ठीक है। तो वही सेल्स तक पहुंचता रहेगा एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विल नॉट हेल्प टू ब्रेक डाउन ऑक्सीजन इनसाइड योर सेल्स। तो एनर्जी नहीं आएगी बॉडी के अंदर एंड आफ्टर फ्यू आवर्स दैट पर्सन कैन डाई इवन, अगर उसको फिर से प्योर ऑक्सीजन सप्लाई या प्यूरिफाइड गैस एयर ना मिले, ठीक है। तो दैट इज व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस। Here it is written, better underline this. Fishes on the other hand have only 2 chambers। I told you that Pisces जो है class of vertebrates, they have only 2 chambers in heart, and जो blood मतलब ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन का प्रोसेस जो चल रहा है दैट इज कैरीड आउट इन गिल्स, नॉट इन हार्ट, and that passes directly to rest of the body through gills। अंडरलाइन कर लो इसको। तो उनमें हार्ट में ये जो प्रोसेस या गैसियस एक्सचेंज है वो नहीं होता, गिल्स में होता है। Yes, what is known as or what is meant by blood pressure? Blood pressure. I've asked you to open your books, you can read and tell. Hriday, what is meant by blood pressure? Yeah? Blood pressure. Blood pressure. आर्टरीज और वेन्स किसमें ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो करता है? आर्टरीज, वेन्स में कम होता है, रहता है मगर प्रेशर, हाँ कितना? आर्टरीज में कौन ब्लड पंप कर रहा है? कर रहा है कोई ऑर्गन है सेल के अंदर? हार्ट सेल्स के अंदर भी है। कितने हार्ट से तुम्हारे? I think we all animals have just one heart and that pumps blood only to arteries। तो arteries में ही blood एक force या एक pressure के साथ flow करता है। हाँ जी, organ से जो blood आ रहा है वापस उसमें कोई pressure नहीं है veins में। तो जो blood pressure हम जो term use करते हैं that is actually the pressure by which the blood flows through your arteries, ठीक है। और इसमें भी 2 टाइप का प्रेशर है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर इज, यस कबीर,
जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वो ब्लड को पंप करते हैं आगे आर्टरीज में, तो उस टाइम पे ब्लड में मैक्सिमम प्रेशर रहता है, दैट इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। और उसके बाद वेंट्रिकल हर एक रिदमिकली, आपको पता है मसल्स का काम क्या है, रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना, और हार्ट के अंदर तो एग्जैक्ट रिदम में होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर वो रिलैक्स हो जाती है वेंट्रिकुलर मसल्स, तो वेंट्रिकुलर मसल्स के रिलैक्सेशन के टाइम पे प्रेशर फॉल हो जाता है, दैट प्रेशर इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। और 120 मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर हेल्दी है, जिसका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, तो उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर है अपर वाला, दैट जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आर्टरीज में हायर प्रेशर पे ब्लड आ रहा है, वो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। millimeter of mercury is a unit which is used to find or you depict pressure। हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है ना, तो प्रेशर को हम मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में जनरली डिपिक्ट करते हैं। तो दिस इज 120 millimeter of mercury is systolic pressure and 80 millimeter of mercury is diastolic pressure। And when this pressure you can say exceeds above 130 or 140, then it is known as hypertension or high blood pressure, and that is a very common problem especially in Indian, because Indian food जो हम खाते हैं ना, बहुत सारे पराठे खा रहे हो, फ्राइड, आज पकौड़े खा लो, आज ये खा लो, पंजाब में तो वैसे ही बहुत ट्रेंड है, तो all these spicy fried food can increase salt concentration। Actually you know which hormone controls the amount of salt, you can say, जिसको रेगुलेट करता है आपके ब्लड के अंदर, कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन नहीं है, थायरॉक्सिन तो बॉडी, थायरॉक्सिन अदरवाइज सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, बट बेसिकली ब्लड में ये सॉल्ट लेवल, जैसे शुगर लेवल इंसुलिन करता है, सॉल्ट लेवल को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? हाँ, एड्रेनलिन करता है। एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये मतलब इसका अमाउंट गड़बड़ा जाता है अगर सॉल्ट इंटेक हम ज्यादा कर ले, ये उतना रेगुलेट नहीं कर पाएगा। सॉल्ट इंटेक बढ़ते ही आपकी जो बॉडी है वो फिर उसको उतने अच्छे, मतलब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते ही ब्लड में प्रेशर बढ़ने लगता है, तो दैट कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर। तो सॉल्ट इंटेक कम करना चाहिए एजिंग के साथ साथ, तो स्पेसिफिकली। Yes, body pressure is measured by an instrument. Blood pressure is measured by an instrument called sphygmomanometer। नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने की डिवाइस है, दैट इज बैरोमीटर होती है, ठीक है। और गैसियस, किसी भी गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए डिवाइस जो यूज होती है वो मैनोमीटर होती है। तो दिस इज मैनोमीटर का थोड़ा सा एक आप सोच सकते हो कि मॉडिफिकेशन है स्फिग्मोमैनोमीटर। डिवाइस तो यू मस्ट हैव सीन, जनरली डॉक्टर्स यूजिंग इट, आजकल तो टेस्ट करते हैं वो ब्लड प्रेशर। Yes, what is the basic difference between arteries and veins? हाँ जी बोलिए। क्या? High blood pressure is hypertension caused by constriction of arterioles। Actually क्या होता है कि arteries या arterioles में sometimes, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, डिपोजिशन हो जाता है उसका, तो उससे क्या होता है जो अंदर डायमीटर है ना इन आर्टरीज का, वो कम हो जाता है। कंस्ट्रिक्ट होना मतलब नैरो हो जाना, तो नैरो होने से क्या होता है ब्लड को और ज्यादा तेजी से फ्लो होना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई तो देनी है, तो दैट कैन रिजल्ट इन इंक्रीज हाई प्रेशर।